Welcome to Shikshan Shatu friends. We are here to start a new course on 11th standard, that is 11th standard physics, and today we are going to start our first topic, that is units and measurement. Okay, so before starting the units and measurement topic, I would like to make clear some things that are what we need practically. That is, what is the importance of unit, what is the importance of measurement. Okay, so first thing is we need unit because in order to measure each and every physical quantity, first of all we will define physical quantity, we will define physics, then we will go for each and everything. Okay, in order to define any physical quantity we need two things, one is magnitude and other is unit. Okay, so we'll see one by one. Let's start with the first topic or first article, that is physics. So basically you may have learned the physics, chemistry, math in the 10th standard combinedly, that is you may call this as science. Okay, but now we are having separate branches, that is physics, chemistry, mathematics and your biology. In biology you may have zoology and botany. So what is physics basically? According to me, physics is nothing but a science of measurement. Okay, physics is nothing but a science of measurement. You can have so many definitions. Physics is nothing but in order to discover the laws in the nature मधले जे काही लॉज असतील ते तुम्हाला डिस्कवर करायचे, ते सायन्स म्हणजे तुमचं फिजिक्स आहे. ठीक आहे, अशा अनेक गोष्टी आहेत जे की ज्या ठिकाणी तुम्ही फिजिक्स डिफाइन करू शकाल. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट I would like to make a definition of physics. Okay, so what is physics? Just physics is nothing but a science of measurement, science of measurement. ठीक है, so whenever a term comes a measurement, I need to define a physical quantity. मेजरमेंट कशाचं करायचं आहे, ते एक पर्टिक्युलर क्वांटिटीचं करायचं आहे. त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणणार आहे, फिजिकल क्वांटिटी. ठीक आहे, इट मे बी लेंथ, इट मे बी मास, इट मे बी युअर एनी फिजिकल क्वांटिटी. तर मेजरमेंट करायचं आहे म्हणजे सुरुवातीला तर एक टर्म येतो पुढं, ती टर्म म्हणजे काय असेल, ती टर्म म्हणजे तुमची असेल फिजिकल क्वांटिटी. तर फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय ते पाहूयात. ठीक आहे, सो व्हॉट इज फिजिकल क्वांटिटी? Okay, physical quantity is a physical property of matter, radiation and interaction between them. Physical quantity is a physical property of matter, radiation and interaction between them. Okay, so means physical quantity नेमकं काय, ती एक प्रॉपर्टी आहे. कशाची प्रॉपर्टी आहे? ती एक मॅटरची प्रॉपर्टी आहे किंवा एखादी रेडिएशनची. वाय आय एम कॉलिंग रेडिएशन? रेडिएशन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वेव्स असतील तर वेव्सची वेवलेंथ असेल, त्याची लेंथ असते काहीतरी, त्याची फ्रिक्वेन्सी असते. ठीक आहे, म्हणजे फिजिकल क्वांटिटी ही एक प्रॉपर्टी आहे. कशाची प्रॉपर्टी आहे? एक मॅटरची आहे, रेडिएशन आहे किंवा दोघांच्या इंटरॅक्शन मधली आहे. ठीक आहे, सो व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? एक्झाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, so after what to say defining the physical quantity, I would like to define some types of physical quantities. Okay, so let's see some types of physical quantities. Physical quantities can be divided into two types. Basically physical quantities is divided into two types. What are they? Number first is fundamental quantities. और दूसरी है derived quantities. पहली कौन सी है? फंडामेंटल. दूसरी कौन सी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल दिस वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स बेसिक. बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब ये होता है कि जो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज जो कि दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं है. सो हाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज एज the physical quantity which do not depend on do not depend on
अदर फिजिकल क्वांटिटी कई के लिए डिपेंड नहीं है, मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, फॉर इट्स मेजरमेंट, such physical quantities are called as, such physical quantities are called as, are called as, are called as fundamental quantities. Time etc. means in order to measure length, लेंथ मुझे मेजर करनी है, डायरेक्टली मैं मेजर कर सकता हूँ, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मुझे टाइम मेजर करना है, डायरेक्टली मैं टाइम मेजर कर सकता हूँ, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, मुझे दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज ये होंगे जो क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड रहते हैं, कई के लिए, मेजरमेंट के लिए। मतलब ऐसे क्वांटिटीज जो मेजरमेंट करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एरिया, ठीक है, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? मुझे कैलकुलेट करना होगा लेंथ कैलकुलेट करना होगा बोल तो मुझे एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो एरिया इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड लेंथ इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सो व्हाट इज द basic definition of the derived quantities? How would I define this derived quantity? The quantity which depend on other fundamental quantities for its measurement, such physical quantity is called as derived quantity. Okay, हम ओके ना, ओके। डिराइव्ड क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन किए वाले हैं? A physical quantity which depend on other physical quantity for its measurement, such physical quantity is called as derived quantities. ऐसे कौन से physical quantities है? एक तो है आपका एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। सो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी सब क्वांटिटीज हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि सब क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड रहना पड़ता है, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। सो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। सो इनको डिफाइन करने के लिए फिर एक चीज मुझे लगेगी, वो है कौन से भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज लगेंगे। एक नंबर 1 है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। दूसरा क्या है? यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँगा सूरज से जाके एक शुगर लेके आओ, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा? तो उन्हें क्या पूछेगा मुझे कि कितना लाना है, 2 kg लाना है, 3 kg लाना है। मतलब कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ की ज़रूरत है। नंबर 1 है मैग्नीट्यूड, नंबर 2 है यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 2 kg हम लेंगे, ये जो न्यूमरिक टर्म है आपकी, इसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो टर्म है इधर की केजी, इसे हम कहेंगे यूनिट। मतलब इट मे बी लेंथ, इट मे बी मास, इट मे बी टाइम। फॉर एग्जांपल टाइम 2 सेकंड्स, ठीक है, 3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। ये 2 है जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। और जो दूसरी वाली टर्म है यहाँ पे, उसे हम कहेंगे यूनिट। मतलब कौन सी ही फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 वाले है मैग्नीट्यूड, नंबर 2 है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या है? मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम हो गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे? यूनिट को हम डिफाइन करेंगे अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है, कई के लिए मेजरमेंट करने के लिए। क्या मेजरमेंट करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, उससे हम कहेंगे यूनिट, ठीक है। तो मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट अलग होगा क्या? हाँ, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट अलग होगा। जैसे कि लेंथ है, लेंथ हम कैसे में मेजर करते हैं? लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। मास कैसे में, किस में मेजर करते हैं? केजी में, ग्राम में। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में, ठीक है। ये जो सेकंड है वो यूनिट हो गया। वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है,
किसका स्टैंडर्ड है? मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड है। क्या मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड है? फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड, उसे हम कहेंगे यूनिट। सो आई डिफाइन द यूनिट एज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। ठीक है, सो थैंक यू। ओके, अब यूनिट तो हमने डिफाइन कर लिया। यूनिट का डिफिनेशन कैसे किया वाला है? A standard used for the measurement of physical quantity, such standard is called as unit। ठीक है, जिस प्रकार हम फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में डिवाइड किए, उसी प्रकार हम यूनिट को भी दो टाइप्स में डिवाइड किए। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हम किसे कहेंगे? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इटसेल्फ कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। हम डिराइव्ड यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल फंडामेंटल यूनिट का फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। सो एग्जांपल यूनिट फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल होगा मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, टाइम हो गया मास का, किलोग्राम। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स नथिंग बट एरिया का यूनिट ले लो। एरिया का यूनिट क्या रहता है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का ले लो मीटर क्यूब। फोर्स का ले लो न्यूटन। एनर्जी का ले लो जूल। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज ऑल यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। दीज ऑल यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। इन दोनों का मिला के जो होता है उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इन दोनों का जो मिला के होता है, द सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिस्टम इन द सेंस सब कुछ आ गया उसमें। सब कुछ मतलब क्या क्या आ गया? आपके फंडामेंटल यूनिट्स आ गए, आपके डिराइव्ड यूनिट्स आ गए। ये सब फंडामेंटल, डिराइव्ड, ये पूरे मिला के जो यूनिट्स बनते हैं ना, उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दोनों का मिला के क्या होगा? सेट होगा, एक सेट होगा, एक सेट तैयार होगा। अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, fundamental units and derived units are called as or is called as system of units, is called as system of units. So what is system of units? A set of fundamental units and derived units is called as system of units. Okay, now I am making the types of system of units because there are so many types. There is some British system. Okay, there is some MK system, that is metric system, it is called as MK system है, CGS system है, FPS system है, SI system है। ऐसे बहुत प्रकार के system of units है। ठीक है, वो हम देख लेंगे अभी। A system of units in which length, mass, time is defined in meter, kilogram, second. Such system of units is called as MK system. Next, a system of units in which your length, mass, time is defined in centimeter, gram, second. Such system of units is called as CGS system. Next, third, a system of units in which length, mass, time is represented in foot, pound, second. Such system of unit is called as FPS system. Means you can see it here, there are same physical quantities but defined in different units. एक ही physical quantity है, हर एक सिस्टम में हम उसे अलग अलग यूनिट्स में ये कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम केस में लेंथ को ही मीटर में यूज कर रहे हैं, CGS में सेंटीमीटर में, FPS में फुट में। फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, मगर रिप्रेजेंटेशन हम अलग अलग यूनिट में कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? अलग अलग यूनिट में। ठीक है, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग, फॉर एग्जांपल लेंथ ले लो, इधर मीटर है, इधर सेंटीमीटर है, इधर फुट है। मास ले लो, इधर किलोग्राम है, इधर ग्राम है, इधर पाउंड है। टाइम ले लो, इधर सेकंड, उधर ही सेकंड। ठीक है, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी हर एक सिस्टम में अलग अलग, मतलब देयर इज अ वेरिएशन in measurement. Okay, now in order to remove this variation there must be uniqueness. कहाँ पे भी जाओ तो मतलब मुझे 2 किलो शक्कर लेनी है,
तो कहीं पे भी जाओ तो मुझे 2 kg 2 kg kg जो है ना 2 kg जो है वो यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक नई सिस्टम हम डिफाइन करेंगे, दैट इज SI सिस्टम। It is international standard system. This system is nothing but international standard system. ठीक है, this system is called as international standard system. This system is accepted worldwide. कहीं भी जाओ ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है, ठीक है। So according to this system he has made 7 fundamental units, 2 supplementary units, ठीक है। So I will define it here. चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अब तक क्या किया हमने। पहले तो फिजिक्स का डेफिनेशन लिया है, ठीक है। फिजिक्स का डेफिनेशन कैसे किया है, साइंस ऑफ मेजरमेंट किया है। बाद में फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन बनाया। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कैसे बनाया, द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड दोनों का इंटरेक्शन, इसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के बाद हमने उसके टाइप्स बनाए। उसके 2 टाइप्स बनते हैं। नंबर 1 है फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 2 है योर डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने डिफाइन कैसे किए वाला है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमने डिफाइन किए वाला है द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, such physical quantity is called as fundamental quantity. Derived quantity को हम क्या कहेंगे, the quantity which depend on other physical quantity for its measurement is called as derived quantity, ठीक है। तो fundamental quantity के एग्जांपल क्या होंगे, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, और derived quantity क्या होंगे, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में हमने यूनिट डिफाइन किया वाला है, ठीक है। यूनिट क्या होगा, एक स्टैंडर्ड होगा जो मेजरमेंट के लिए एक मेजरमेंट करने के लिए यूजफुल होगा। स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, उसे हम कहेंगे यूनिट, ठीक है। सो यूनिट्स के भी हम 2 टाइप्स बताए। नंबर 1 है योर फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 2 है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल्स हमने ले चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल्स होंगे योर मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट योर डिराइव्ड क्वांटिटी के डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स जो होंगे उसे हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल क्या होंगे, डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल होंगे मीटर स्क्वायर, न्यूटन, जूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीन अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड derived units called as system of units. Next system of units are also having near about 3 types. We have seen it now, okay. That is MKS, CGS and FPS. MKS मतलब क्या, MKS मतलब the length, mass, time is defined in the form of meter, kilogram, second. That is MKS. It is also called as metric system. This system is also called as metric system. Next CGS system हमने देखा है। CGS system में क्या हुआ है, CGS system में length, mass, टाइम ये हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में मेजर किए। इस सिस्टम को हम कहेंगे द सिस्टम इन विच लेंथ, मास, टाइम इज measured in the form of centimeter, gram, second. This system is called as CGS system. Next FPS system. FPS system is the system in which the length, mass, time is measured in foot, pound, second. ठीक है, उसके बाद में हमने just international standard system. According to system, there are 7 fundamental units, 7 fundamental quantities. What are that? Let's see here. Okay, system से क्या है? नंबर एक तो एक international standard system है. एक तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है. कैसे सिस्टम है? इंटरनेशनल है. हाँ, ठीक है. दूसरी बात, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइंड है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल. कितने? 7. क्या है फंडामेंटल? क्या यूनिट्स बोल सकते हैं या क्वांटिटीज बोल सकते हैं? व्हाट आर दैट? ठीक है, तो पहली है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा. इसमें पहले लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी.
उसका यूनिट और उसका सिंबल। ठीक है, तो फर्स्ट इज ओके, अकॉर्डिंग टू दिस SI system there are 7 fundamental quantities, 7 fundamental units. What are they? Let's see. It's length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. These are 7 fundamental quantities. उसको ध्यान में कैसे रखना है मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। कैसे में? किसमें? SI सिस्टम में। मास का क्या होगा? किलोग्राम होगा। टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। धोखा है आपको सिर्फ टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, उसका ऐसा सिस्टम है केल्विन। ठीक है, तो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? इट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इससे क्या एक वर्ड याद रखो, ये सब याद रह जाएगा। क्या है? एलियम तेला। LMTTELA। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एलियम तेला। एलियम तेला मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने क्या कहा? एलियम तेला। एलियम तेला मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। साथ के साथ आ गए यहाँ पे देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। मीटर का होगा सिंबल एम, किलोग्राम का होगा केजी, सेकंड का होगा SCC, केल्विन का होगा कैपिटल K, एम्पियर का होगा A, कैंडिला का होगा CD और मोल का होगा MOL। सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड दिस आर द इट्स सिंबल्स। क्या होगा? एलियम तेला मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, electric current, luminous intensity or amount of substance. These are the 7 fundamental quantities, these are the 7 fundamental units and these are their symbol, respective symbols of all these 7 fundamental quantities according to the SI system. Apart from these 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities, other all physical quantities are called as derived quantities. ये 7 छोड़ के बाकी सबको कहेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये 7 को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको डिफाइन करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए बाकी कौन से ही क्वांटिटीज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है हम देखेंगे। सो अब तक हमने देखा है व्हाट टू से फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स? That there are two supplementary units. One is radian and other is steradian. So plane angle and solid. Apart from 7 fundamental quantities, there are 2 supplementary quantities called as plane angle and solid angle. ठीक है, so what is plane angle and what is solid angle I will explain in the next video because the video is being to be so lengthy. Okay, so what is plane angle? Plane angles is unit is radian and symbol is RAD. ठीक है, now solid angles unit is steradian and it is SR. Okay, so you know plane angle is nothing but here it's angle made is theta. Okay, generally we calculate in the form of degree. Okay, but instead of degree its SI unit is radian, so please try to calculate only in the form of radian. Just I will say you the conversion. Pi-radian is nothing but 180 degree. ठीक है, pi-radian is nothing but 180 degree. In next video I will just give the conversion of degree into radian, radian into degree and what do you mean by solid angle. ठीक है, तो just इसको सब फिजिकल क्वांटिटी से लेकर सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक आज रिवाइज करो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो विल मीट विथ नेक्स्ट आर्टिकल एंड नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।